Good morning everyone. So in the last class we have just did the revision of chapter 1 integers. Okay, today we will start the revision of chapter 2 fractions and decimals. We have some practice questions here. So we will do them today. The first question is arrange in ascending order. You have given some fractions and you have to arrange them in ascending order. Ascending means from smallest to biggest. Okay, so first of all you have to write the yes. So first of all you have to write the smallest fraction, then bigger and then biggest. So you have to find the smallest fraction among them first of all. To find the smallest fraction you can see all the denominators are same. We have to compare them. So if we want to compare, so on the behalf of denominators we can't compare because all the denominators are same. And you have studied in that second chapter, if denominators are same, then we compare the fractions according to their numerators. Okay, numerators are different, so we can compare them. So first of all, ascending order, what will be the ascending order? When the numerator denominators are same, then the fraction having smallest numerator will be the smallest fraction. Okay, if denominators are same, then the fraction which is having smallest numerator is will be the smallest fraction. You can see 3 is the smallest numerator, so 3 upon 8 will be the smallest fraction. Okay, yes, very good Jatin. Then 5 is bigger than 3, so next fraction will be 5 upon 8. 5 upon 8 is greater than 3 upon 8. Then 11, थर्ड नंबर पे आएगा 11 upon 8 because 11 is greater than 5. And at last 16 is the biggest numerator among all of them, so 16 upon 8 is the biggest fraction. Okay, so this will be the ascending order. Fine. Then B part, you can see in all these fractions which thing is same. You can see what is same in all these fractions. Yes Jatin, very good. Numerator is same. In the A part denominators were same and in the B part numerators are same. So how will you identify which one is the smallest fraction? What will be the method? You have to see their denominators, because numerators are same, so we have to compare the fractions according to their denominators, because the denominators are different. And in this case the fraction which is having greatest denominator will be smallest. The relation will be opposite here. Okay, फर्स्ट में देखा था हमने डिनोमिनेटर सेम थे, तो न्यूमरेटर के बेसिस पे किया था. न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होता है उसका फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होता है. बट अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर अगर हम देखें, व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है उसका फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है. यस. So here you can see 11 is the biggest denominator, so 2 upon 11 will be the smallest fraction. Then after 11 9 will come, so 2 upon 9. Then after 9 7 will come because 7 is less than 9, so 2 upon 7 will be greater. Okay, and you can see 5 is the smallest denominator, so 2 upon 5 will be the greatest or biggest fraction. Okay, in the C part you can see all the numerators and all the denominators are different. So first of all you have to make all the denominators same by taking, yes Himanshi, by taking LCM of all the denominators. So first of all find LCM of all the denominators 5, 4, 10 and 20, because we have to make them equal to their LCM. Okay, हम सेम कैसे बनाएंगे इनको, डिनोमिनेटर्स का LCM लेके. LCM होगा 5, 4, 10 and 20 का 20. How will it come? 5, 4, 10 and 20. You all know how to find the LCM. First of all, divide them by smallest common factor. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 10s are 20. Now you can see again 2, 5, 1, 5 and 5. Then now we have to multiply all these factors. 2 2s are 4 and 4 5s are 20. So 20 will be the LCM for all of them. Okay.
So now we have to convert all of these denominators into 20. So 3 upon 5 को अगर मुझे 5 को 20 में convert करना है, then I have to multiply both numerator and denominator with 4. Yes, very good. 4 3s are 12 and 5 4s are 20. It will be 20. Then again you can see 1 upon 4. मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए, तो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको फाइंड करने हैं टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस. ओके, सो 5 1s are 5 and 5 4s are 20. देन 7 अपॉन 10. 7 अपॉन 10 को मुझे 10 को अगर 20 में कन्वर्ट करना है, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 2. सो 7 2s are 14 and 10 2s are 20. अगेन the last fraction you can see 6 upon 20 here. 20 is already given, वो ऑलरेडी LCM के इक्वल है, तो नो नीड टू convert it into equivalent fraction. Now we have got the like fractions as 12 upon 20, 5 upon 20, 14 upon 20 and 6 upon 20. You can see their denominators are same now, so we can compare them according to their numerators. So which one is the smallest numerator? You can see 5. 5 is the smallest numerator, so 5 upon 20 will be the smallest fraction. After that 6 upon 20, then 12 upon 20, and after that 14 upon 20. So this will be the ascending order. I have written ascending order according to the ascending order of numerators. Okay, so now we have to write their original fractions. Don't leave the answer here only. ठीक है, आंसर को यही नहीं छोड़ना है, हमें जो गिवन फ्रैक्शंस है उनका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है. तो इनके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जिनसे हमने फाइंड किए हैं वो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको लिखने हैं. 5 अपॉन 20 का है 1 अपॉन 4. 6 अपॉन 20 आपको गिवन है. 12 अपॉन 20 का है 3 अपॉन 5 एंड 14 अपॉन 20 का है 7 अपॉन 10. सो दिस विल बी द असेंडिंग ऑर्डर फॉर ऑल ऑफ दीज फ्रैक्शंस. ओके, now the next question is arrange in descending order. Now ascending order we have done. You have to do both the part yourself. Okay, आपको खुद करने हैं दोनों part. Descending में क्या होगा? We have to write the fractions from biggest to smallest. इसका जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस हो जाएगा. जिस सीक्वेंस में हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस होता है डिसेंडिंग, फ्रॉम द बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट वन. ओके, सो प्रोसेस विल बी द सेम. यहाँ देखिए फर्स्ट में डिनोमिनेटर सेम है तो आपको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग लिखना है, और सेकंड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है, तो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड मेक देम लाइक फ्रैक्शंस. ओके, सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. नाउ थर्ड क्वेश्चन. In the third question you can see we have to simplify some given questions here. So first of all 9 upon 20 plus 16 upon 35, this is the addition of fractions. So first of all find the LCM of 20 and 35. So what will be the LCM? Find students and tell me. First of all we have to just divide both of them with the smallest common factor. So I am dividing them with 5. 5 4s are 20, 5 7s are 35. Yes, very good Jatin. So you can see now 4 and 7 इनका कोई common factor नहीं है, we can't divide them. So 5 into 4 is 20 and 20 into 7 will be 140. So 140 will be the LCM. Good students. Now we have to convert the given fractions having LCM 140. So I am taking LCM as 140 now. How do we solve? First of all take first fraction. Okay, so what we have to do is 20 को मुझे अगर 140 में convert करना है, then I have to multiply with 7. 20 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 140 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर मैं 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ देन आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद 7. सो 7 9s are 63. ओके, देन 35 को मुझे अगर 140 में कन्वर्ट करना है तो कितने से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टू फाइंड दैट आई हैव टू डिवाइड 140 बाय 35. ओके, सो मुझे 140 डिवाइडेड बाय 35 कितना आएगा बेटा? 7 2s are 40, 7 5s are 4. 4 will come. अगर मुझे इस 35 को 140 में कन्वर्ट करना है तो मुझे 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस,
अब ये 4 मैं न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 4 जा 64. Yes, good. Now solve them. 63 plus 64 will be 127 and denominator is 140. So 127 upon 140 is the answer. Okay. So can you tell me which type of fraction is this? Now you can see this is proper fraction because numerator is less than the denominator. Okay. Now solve the B part. In the same manner we will solve the B part. We have to find the LCM of denominators 6 and 8 and the LCM will be 24. You will find it yourself. Okay, ये आपको खुद find करना है. Then yes, good Palak. 24 will be the LCM. Now if I want to convert this 6 into 24, I have to multiply with 4. 6 4s are 24. So 13 को भी 4 से multiply करेंगे. 13 4s are 52 minus 8 3s are 24. If I want to convert this 8 into 24, I have to multiply with 3. 3 को भी फिर 3 से multiply करने पड़ेगा. 3 3s are 9. So if I subtract 9 from 52, it will be 43. So answer is 43 upon 24. Yes. Okay. Now move to the next C part. Here you can see the fractions are given in the form of mixed fractions. Okay, Vansh. Then first of all convert them into improper fractions. Okay, so 8 9s are 72 and 72 plus 2 will be 74 upon 9. You all know how to convert the mixed fraction into improper fraction. Just multiply the denominator with the whole part and add the answer into numerator. Okay. Yes, Vansh. 9 8s are 72 and 72 plus 2 is 74. Okay. Then 5 3 is 15. Yes, good students. It will be 16 upon 5 because 15 plus 1 is 16. Then it is 2 upon 3. Now I have to find the LCM of 9, 5 and 3. What will be the LCM? Tell me. What will be the LCM of 3, 5 and 9? It will be 45. Yes, good Jatin. It will be 45. Okay. So now if I want to take first fraction first of all, I have to convert 9 into 45. So I have to multiply with 5 both of them. 5 से 74 को multiply कीजिए. It will be 5 4s are 20. 0 I will carry 2 here. 5 7s are 35. 35 plus 2 is 37. So it will be 370. Okay. Minus. Now if I want to convert this 5 into 45, तो मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. गुड अनंत. 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे 16 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 16 9s are 144. फाइन. देन इस 3 को मैं 45 में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? टू मल्टीप्लाई इट विद 15. 15 3s are 45. So 2 को भी 15 से मल्टीप्लाई करनेगा तो 15 2s are 30. Okay. Now you can see 370 and 30 both are positive. I have to add them. They will be 400 minus 144 will come as it is upon 45. So if I subtract 144 from 400, I will get 256. So 256 upon 45 will be the answer. Now students, you can convert this answer into mixed fraction because it is improper fraction. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग प्रोसेस, डिवीजन प्रोसेस. देखिए मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ. 24 से मैं 43 को अगर डिवाइड करूंगी तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा कंप्लीटली. इसका रिमाइंडर होगा 19 और डिनोमिनेटर विल कम एज इट इज 24. आप इसे डिवाइड करके देखिएगा. आपको पता है जो होल पार्ट होता है, क्वोशिएंट होता है, वो मैं होल पार्ट की जगह लिखते हैं. Then remainder will come at the place of numerator and denominator will come as it is. Okay. So 119 upon 24 will be the mixed fraction for this improper fraction. In the same manner, you can convert this also into mixed fraction. Now move to the D part. It is multiplication. Okay. So to multiply them, first of all, again you have to convert them into improper fraction. So 8 4s are 32 and 32 plus 1 is 33. It will be 33 upon 4. Into 11 ones are 11. 11 plus 7 is 18. 18 upon 11 and 16 is given you as it is. Now you know to multiply the fractions
numerator will be multiplied with the numerator and denominator will be multiplied with the denominator. And if whole number is given to you, then whole number is also got multiplied with the numerator. No Anant, LCM की बात कहाँ से आ गई बेटा इसमें? LCM we take only in addition and subtraction, not in multiplication and division. Fine. (33 into 18 into 16 divided by 4 into 11. ओके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है. वी गॉट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पार्ट्स. नाउ द two methods are here. First method is you have to multiply all of them and find the numerator. Then you will multiply 11 with 4 and you will find the denominator, and then you find its simplest form, but it is too lengthy. बहुत लेंदी हो जाता है, वो बहुत बड़ी डिजिट आ जाती है उसमें. तो उसके लिए शॉर्ट मेथड क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम आपस में ही कॉमन फैक्टर से कट कर देते हैं. If there is any common factor in the of the numbers present in numerator and denominator, we have to cut them. You can see 4 और 16 कट हो रहे हैं एक दूसरे से. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. Again 33 and 11. So 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. Now you can see denominator में only 1 remaining. Yes हिमांशी, 1 into 1 will be 1. डिनोमिनेटर हम लिखते नहीं है अगर वो 1 होता है तो. So just multiply the numerators. What are the numerators now? 3 into 18 into 4. Okay. So 4 3s are 12 and 12 into 18 it will be 216. So answer, yes, good Jatin, answer will be 216. So in the multiplication of fractions, you just have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator, and then cut them numerator and denominator with their common factors if there is any common factor of them. ठीक है, अगर कोई common factor है तो आपको कट करना है. After that you will solve. Okay. Then don't take LCM in multiplication and division. LCM will be taken in the addition and subtraction only, not in the multiplication and division. Okay. So E part में आपको divide करना है two fractions को. This is the division of fraction. So to find the division, you can see 5 upon 9 is the dividend, 20 upon 27 is the divisor. So what will be the process? Write the dividend as it is, convert the, yes Sanskriti, good, convert the division into multiplication, and then reciprocal the divisor. What will be the reciprocal of divisor? It will be 27 upon 20. To find the reciprocal of any fraction, just interchange the places of their numerator and denominator. ये 20 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 27 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. देन again you can see we can cut the numerator and denominator both with the common factors. 9 1 are 9, 9 3 are 27, 5 1 are 5, 5 4 are 20. 3 into 1 will be 3 and 4 into 1 will be 4. So 3 upon 4 is the answer for that. Okay. Now F part में 4 upon 5 of a meter. Of operation you can see here with the fractions. So first of all you have to convert the of operation into multiplication, and before that you have to convert this meter into centimeter. Okay, so 4 upon 5 of, how many centimeters are there in 1 meter? 100 centimeters. So if unit is given in any question, you have to write the unit. Unit नहीं लिखेंगे तो marks कट जाएंगे. So unit is must. Okay. Now convert it into multiplication. 4 upon 5. Of को मैंने multiplication में change किया and 100. Okay. Then yes, 80 centimeter will be the answer. 5 1s are 5, 5 2s are 10. 20 times cut होगा 105 से. Denominator में only 1 बचा. No need to write this. 4 into 20 will be 80. So it will be 80 centimeter. Okay. Only some students are giving me reply. Other students are, I don't know where are they. उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है अदर स्टूडेंट्स का मेरे पास में. Yes, 5.6 into 201. Now in the next part you have to just multiply a decimal number with the whole number. Okay, you can see decimal is there, so 5.6 is a decimal number. So to multiply decimal number with the whole number, first of all multiply them as whole numbers only. Means इसको भूल जाइए अभी डेसिमल को, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में हम डेसिमल पुट करेंगे. ठीक है.
तो 56 को हमें 201 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 56 को 201 से मल्टीप्लाई करेंगे गुड जतिन, तो 11,256 आएगा, 11,256। ओके, बट ये तो इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया एज होल नंबर्स, बट इफ यू वांट टू पुट द डेसिमल देन यू हैव टू काउंट डेसिमल प्लेसेस इन द डेसिमल नंबर. How many decimal places are there in this decimal number? Only one decimal place. As you can see, only one digit is written after the decimal. डेसिमल के बाद में सिर्फ एक ही डिजिट लिखी है, तो डेसिमल प्लेस है 1, तो हमें आंसर में भी एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है फ्रॉम द राइट साइड, लेफ्ट साइड से मत लगा देना. ओके, ऐसा नहीं कि आप 1 के बाद में पॉइंट डेसिमल लगा दें तो इट विल बी 1.1256, इट विल बी रॉन्ग. डेसिमल प्लेस हमेशा पीछे से काउंट करते हैं फ्रॉम द राइट साइड. ओके, तो राइट साइड से मैंने एक डिजिट को काउंट किया और उसके बाद में राइट साइड से मैंने एक डिजिट को काउंट किया और उसके बाद में मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो इट विल बी 1125.6. फाइन. सो दिस वाज द G part. Okay, then H part. In the H part you have to just divide the decimal number from a whole number. So what am I doing? मैं किस तरीके से कर रही हूँ बेटा इसको, मैं पहले ही डेसिमल रिमूव करूंगी, इसे होल नंबर में कन्वर्ट करूंगी और उसके बाद अगेन डेसिमल आंसर में लगाऊंगी. कैसे? 12375 मैंने इसको रिमूव किया डेसिमल को, तो आप जानते हैं कि डेसिमल जब रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस के इक्वल जीरोस आ जाते हैं. ओके, डेसिमल कितने प्लेसेस हैं? 2, तो 2 0 मैंने नीचे लगा दिए विद 1, सो इट विल बी 100. ओके, और डिवाइडेड बाय 15/1. 15 क्या है? 15 को मैं 15/1 लिख सकती हूँ. नाउ 1 2 3 7 5 you can see two fractions are divided here, so डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए. 15/1 का रेसिप्रोकल लिखिए, इट विल बी 1/15. मैं इसे और किस तरीके से लिख सकती हूँ? 12375 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1/100. ओके, ये मैंने इनके प्लेसेस आपस में इंटरचेंज कर दिए. ये 100 मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये 15 यहाँ शिफ्ट कर दिया, सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. ठीक है, नाउ इसको सॉल्व कीजिए. So now I have to solve this division. So just 12375 को 15 से डिवाइड कीजिए. What will be the answer? 15 8s are 120. Subtract करेंगे, it will be 3. I am carrying 7 here. 15 2s are 30. Again subtract करेंगे 7. I am carrying 5 here and 15 5s are 75. Remainder is 0. So the answer will be 825. If I divide this, so answer will be 825. So 825 मैंने यहाँ लिख दिया और डिवीजन में यहाँ ऑलरेडी 100 दिया हुआ है, so 100 will come in the denominator. Okay, good प्रियांशी. Then ये आप देख सकते हैं कि 100 है डिनोमिनेटर में, ये क्या हो गया? डेसिमल फ्रैक्शन हो गया. डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप अच्छे से जानते हैं. 2 0 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर 2 डेसिमल प्लेसेस बनाएंगे, तो इट विल बी 8.25. कितने डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद में? 2 डिजिट, क्योंकि नीचे 2 0 है. अगर 3 0 होते तो 3 डिजिट होने चाहिए थे. ठीक है, 2 0 है तो 2 डिजिट मैंने आफ्टर डेसिमल मेंटेन कर दिए, सो इट विल बी 8.25. फाइन. नाउ नेक्स्ट, ये I J K L M N ये सभी पार्ट्स आपको खुद करने हैं बेटा. इस तरीके के मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, सो यू विल डू योर प्रैक्टिस विद दीज क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का क्वेश्चन है ये. सो इन दी फर्स्ट यू कैन सी 8 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी, वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट द बिगर यूनिट टू द स्मॉलर यूनिट. हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कब करते हैं? मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. तो लीटर इज द बिगर यूनिट, मिलीलीटर इज द स्मॉलर यूनिट. बिगर से स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 8 को. नाउ क्वेश्चन अराइजेस विद व्हिच वी शुड मल्टीप्लाई टू 8. ओके, सो 8 liter in milliliter 1000. Yes, because in 1 liter 1000 milliliters are there. Fine.
तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, इसलिए 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द आंसर विल बी 8000 मिलीलीटर। ध्यान रखना, यूनिट लिखना मत भूलना, अदरवाइज पेपर में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 7 मीटर 45 सेंटीमीटर इन मीटर। अब देखिए 7 मीटर 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। 7 ऑलरेडी मीटर में गिवन है आपको, तो उसको तो मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, पहले से ही मीटर में गिवन है। हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है 45 सेंटीमीटर को। तो 45 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, 45 सेंटीमीटर को मीटर में, यानी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में, नो नॉट मल्टीप्लाई बेटा, इट विल बी डिवीजन। बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके ऑपोजिट छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो डिवीजन करेंगे। यस, गुड जतिन। डिवाइड किया किससे? 100 से, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब भी आप फाइंड कर लेते हैं तो आपको ये फाइंड करना है किससे होगा। ठीक है, सो इट विल बी 0.45। आप देख सकते हैं 2 0 है ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, तो 0.45 विल बी दी आंसर। नाउ इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये 7 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर को 0.45 मीटर लिख सकती हूँ ना मैं। अब मैंने इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, दोनों को ऐड कीजिए, सो इट विल बी 7.45 मीटर। ये आपको साइड में करके दिखाना है ब्रैकेट में। ठीक है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फाइन। नाउ दिस वॉज द बी पार्ट, कम टू द सी पार्ट। व्हाट इज द सी पार्ट? सी पार्ट में देखिए 6 किलोग्राम 50 ग्राम इन किलोग्राम। अब 6 तो ऑलरेडी आपको किलोग्राम में गिवन है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। मुझे कन्वर्ट करना है 50 ग्राम को किलोग्राम में, यानी कि स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में, तो डिवीजन होगा। जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन होगा, बट डिवीजन किससे होगा बेटा? 1000 से, बिकॉज इन 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स आर हेयर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, इसलिए मैंने 50 को 1000 से डिवाइड किया है, और आंसर आएगा 0.050। देखिए 3 0 है, तो मुझे यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए डिनोमिनेटर में। 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए मैंने एक 0 और लगा दिया 5 से पहले, क्योंकि 2 ही डिजिट गिवन है, हमें 3 डिजिट चाहिए, तो मैंने एक 0 और लगा दिया, तो इट विल बी 0.050। अब ये ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है 50 ग्राम, तो इसे ऐड कर दीजिए। फाइन, दोनों को ऐड करेंगे तो 6.050 किलोग्राम इट विल बी। ओके, नेक्स्ट DEFG पार्ट, ये आपको खुद करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या करना है बेटा? अ स्टूडेंट सिक्योर 2/5 ऑफ 575 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। कोई स्टूडेंट है, उसने कोई एग्जाम दिया, तो उसमें उसको कितने मार्क्स मिले? 2/5 ऑफ 575। ऑफ ऑपरेशन आप देख रहे हैं, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो ये इतने मार्क्स मिले हैं, तो वो पूछ रहा है कि उस स्टूडेंट को मार्क्स कितने मिले, यानी इसे सॉल्व करके दिखाना है। ये आपको ऑफ ऑपरेशन के फॉर्म में दिया हुआ है कि स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले हैं, इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि एक्चुअली उसको कितने मार्क्स मिले हैं। अनंत, डिवीजन क्यों कर रहे हैं आप? किस चीज के लिए डिवीजन कर रहे हैं? संस्कृति एंड अनंत, the marks secured by the student। कितने मार्क्स सिक्योर करेगा भाई स्टूडेंट? 2/5 ऑफ 575। इतने मार्क्स सिक्योर किए ना उसने, हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ऑफ को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। यस, गुड हिमांशी। नाउ 575 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा बेटा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एंड 5 3 जा, सॉरी 5 5 जा 25। इट विल बी 115। ओके, डिनोमिनेटर में ओनली 1 बचा, नो नीड टू राइट दिस। 2 into 115 एंड इट विल बी 230। 230 मार्क्स द स्टूडेंट गॉट। ओके, सिंपल, आपको जो ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है। फाइन,
सिक्स क्वेश्चन में देखिए, अ फ्रूट सेलर सोल्ड 5/6 ऑफ 180 मैंगोस। कितने मैंगोस सेल किए उस फ्रूट सेलर ने? 5/6 ऑफ 180। आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर के ऑफ ऑपरेशन की फॉर्म में दिया है कि इतने मैंगोज उसने सेल किए, यानी कि टोटल मैंगोज तो 180 थे, उसका 5/6 पार्ट उसने बेच दिया। ठीक है, वो पूछ रहा है हाउ मैनी मैंगोज लेफ्ट टू बी सोल्ड, कितने बचे रह गए सेल करने से। तो ऑब्वियसली जो बिक गए उनको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो यस वेरी गुड जतिन, उसको आंसर आ जाएगा। सो मैंगोज सोल्ड, नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड, कितने मैंगोज सेल किए? 5/6 ऑफ 180। तो इस ऑफ ऑपरेशन को पहले मल्टीप्लीकेशन में चेंज कीजिए। 6 से आप 180 को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 30 एंड 5 इंटू 30 विल बी 150 मैंगोज। कितने सेल किए उसने? 150 मैंगोज। नाउ नंबर ऑफ मैंगोज लेफ्ट टू बी सोल्ड, जो बिकने से बचे रह गए, वो कितने बचे? टोटल मैंगोज माइनस सोल्ड मैंगोज। टोटल कितने मैंगोज थे? 180, और उसने सेल कितने कर दिए? 150। यहाँ ये फाइंड कर लिया ना हमने कितने सेल किए, तो बचे कितने? 30 मैंगोज। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 7। क्लासिफाई फॉलोइंग फ्रैक्शंस। व्हाट यू हैव टू डू, ये डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, और ये 5 टाइप के फ्रैक्शन यहाँ लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है इन कौन से टाइप में कौन से वाला फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो कैन यू टेल मी व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस इन गिवन फ्रैक्शंस। सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है बेटा? प्लीज टर्न ऑफ योर, यस वेरी गुड, टर्न ऑफ योर स्पीकर। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अब देखिए, ये तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली दिख रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 4/5/6 कौन सा फ्रैक्शन है ये? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैटेगरी में लिख दूं, 4/5/6। नेक्स्ट 19/7, इसका देखिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। बेटा भास्कर, इट इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, बट यहाँ आप देख सकते हैं न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 19 जो है वो 7 से बड़ा है ना, तो 19/7 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में लिख दिया मैंने, 19/7। ओके, देन 2/100। 2/100 क्या है ये? न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, सो इट इज प्रॉपर। वेरी गुड, सो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा 2/100। फाइन। नेक्स्ट देखिए 6/15। Again you can see numerator is less than the denominator, so it is also proper fraction, 6/15. 4/7, it is again proper fraction। देखिए 4 is less than the 7, numerator is less than the denominator, so 4/7 is also proper fraction। 11/3/8, ये तो आपको देख सकते हैं, ऑब्वियसली देखने से पता पड़ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 11/3/8 को मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैटेगरी में लिख दिया। 91/15, 91/15 क्या है बेटा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। सो 91/15 इट विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फाइन। 10/13, yes it is again proper fraction because न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। 10 जो है वो 13 से छोटा है ना, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 10/13। फाइन। 17/7, अगेन यू कैन सी 17 बिगर है, 7 स्मॉलर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 17/7। फाइन। 29/1000 देखिए, अगेन न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, यस इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन 29/1000। ठीक है, तो अभी हमने फाइंड करके क्या लिख दिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिख दिए और प्रॉपर फ्रैक्शंस लिख दिए। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हमने लिख दिए। 2 टाइप के फ्रैक्शन बेटा अभी बचे हैं। डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनमें डिनोमिनेटर 10 का एक्सपोनेंट होता है। मीन्स किस टाइप के नंबर होते हैं उसमें? 10, 100, 1000, 10,000 एटसेट्रा।
तो बताइए कौन कौन से फ्रैक्शंस में इस तरह के नंबर आ रहे हैं। यस, वेरी गुड छवि, 2/100 इज द डेसिमल फ्रैक्शन बिकॉज यहाँ पे 100 आ रहा है डिनोमिनेटर में, एंड आफ्टर दैट 29/1000। वेरी गुड जतिन, 29/1000। गुड प्रियांशी, पलक, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो आपको ये टाइप्स याद होने चाहिए फ्रैक्शन के। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2/100 and 29/1000 both are the decimal fractions. Now like fractions, like fractions वो होते हैं बेटा जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो फाइंड कीजिए कौन से ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। यस अनंत, गिव मी रिप्लाई। कौन से ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ देखिए 6 आ रहा है किसी में, नहीं आ रहा। क्या 7 डिनोमिनेटर और किसी फ्रैक्शन में आ रहा है। यस 4/7 में आ रहा है, यानी कि 19/7 एंड 4/7 दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अगेन देखिए 7 क्या और किसी फ्रैक्शन में आ रहा है। यस 17/7। गुड संस्कृति, 17/7। तो ये तीनों क्या है बेटा, लाइक फ्रैक्शंस, बिकॉज दे आर वेरी गुड वंश, बिकॉज दे आर व्हाट 15। यस 15 वाला भी है, वेरी गुड अनंत। 15 वाला जो है डिनोमिनेटर वो भी देखिए दो फ्रैक्शन में सेम है, तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है। और कौन कौन सा पेयर है लाइक फ्रैक्शन का, 6/15 एंड 91/15। ओके, 6/15 देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे भी 15 है, तो दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, तो दे आर लाइक फ्रैक्शंस। ओके, अगेन देखिए क्या और कोई लाइक फ्रैक्शंस है। 13 आ रहा है और किसी में नो, 8 आ रहा है नो। चलिए 10, 100, 1000 ये भी डिफरेंट है। इसका मतलब वी हैव क्लासिफाइड ऑल दी फ्रैक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, सो दिस वाज योर रिवीजन बेटा फॉर द चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अदर क्वेश्चन भी आप करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। ओके, टुमारो वी विल डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप उसको पढ़िए घर पे और कल हम उससे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।